Good morning, friends. In today's unit, we are going to study about order of performance of a reciprocal promises. Reciprocal promises क्या होता है? Reciprocal promises यानी आपने एक promise दी और उसके बदले में मैं आपको एक promise दूंगा, तो that is called as a reciprocal promise. आज के यूनिट में we are going to study about कि order of performance of reciprocal promise. कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते जहां पे देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड. जैसे कि अगर आप कोई दुकानदार के पास जाते हो तो यू गिव अ पेमेंट एंड टेक योर प्रोडक्ट, और फर्स्ट ही गिव्स यू द प्रोडक्ट एंड देन यू मेक अ पेमेंट. जैसे कि इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ डी मार्ट, आप प्रोडक्ट को पहले आपके कैरियर के अंदर लेते हो एंड देन यू टेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द काउंटर. He makes the bill and then you make the payment. In some of the cases, first you have to take the counter. That means you have to make the payment. पहले उससे काउंटर लेना पड़ेगा और काउंटर लेके then you go and collect your product. So there are different cases where the order of performance is sometime defined and sometime not defined. तो यहाँ पे अपन all those cases cover करने वाले जहाँ पे order of performance दिया हुआ है या फिर एक्सप्रेसली डिफाइन किया हुआ है या फिर इट इज इंप्लाइड कि कौन अपना काम पहले पूरा करेगा. तो दैट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. ऑन योर स्क्रीन यू कैन रिफर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस of reciprocal promises. The law relating to reciprocal promise is set out in section 51 to 54. General observation: a contract may consist of an act or two promises, one being the consideration of the other. It's almost same. Every contract involve consideration from both the side. कुछ contracts में it depends कि पहले आप पूरा करोगे और उसके बाद मैं अपना promise पूरा करूंगा. तो there मेरे promise की बारी जब भी आएंगी जब आप आपका performance देते हो. Until then you cannot demand a performance from me. So such kind of a promises are called as a reciprocal promise. In some of the contract there is a simple promise, there is an act. That means I'm going to give you the amount and you're going to carry out the act, or first you're going to carry out the act and I'm going to give you the money for that particular activity. There is no such specific order of performance. But reciprocal promises says that there is a specific order of performance where the first party is going to perform his promise and only then the performance of second party will come into action. Second party का action जब भी आएगा जब first party ने अपना promise पूरा कर दिया. Second party का promise you cannot demand earlier. तो second party will wait for the performance of the first party and only then he is going to perform his promise. So in this scenario where the order of performance is either expressly provided or it is impliedly understood कि performance कौन अपना पूरा देगा, तो उस पार्टी को अपना promise पहले पूरा करना पड़ेगा. Now what they have further given, the second type of contract which involve two promises, one promise from each to the other party is known as a reciprocal promise. In every contract there is a promise from both the side. What is the difference between the ordinary promise and a reciprocal promise? Ordinary promise is there is no order of performance defined. However, in the case of a reciprocal promise, it always depends upon कि कौन अपना promise पहले पूरा करेगा और उसके बाद second party का promise पूरा होने वाला है. This can be illustrated with the following: when A sells 500 quintal of rice to B and B promises to pay the price on delivery. The contract would consist of two promises, one by A to B and another by B to A. These promises are reciprocal promise. There is an ordinary promise, one for other. But यहाँ पे क्या बोला है? When A sells 500 quintal of rice to B, B promises to pay the price on delivery. That means what B has given a promise कि आप माल लेके आओ and I'll give you the money. So what is a contract? How it has been defined? कि पहले
सप्लायर को अपना काम पूरा करना है, सप्लायर को पहले राइस डिलीवर करना है एंड देन द कस्टमर इज गोइंग टू गिव द पेमेंट. तो दिस काइंड ऑफ ए promises आर कॉल्ड एज अ reciprocal. Here the promise for A is the consideration for the promise to B and vice versa. The performance of reciprocal promises can be in a different form. It can be in a different form. So reciprocal promise is nothing but promise from both the side. General terms promises party perform करेंगे. Order of performance में बोला गया है कि when it is expressly given or impliedly understood कि कौन सा पार्टी अपना प्रॉमिस पहले पूरा करेगा, तो उस पार्टी की सबसे पहले जिम्मेदारी आएंगी और सेकेंड पार्टी की जिम्मेदारी जब भी आएंगी जब फर्स्ट पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करता है. What it has been given. Simultaneous performance of reciprocal promise. Simultaneous performance यानी हैंड टू हैंड. आप यहां दो, यहां से उसका प्रॉमिस लो. गिव द गुड्स, टेक द मनी, टेक द मनी, गिव द गुड्स. तो दिस इज साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. This generally happens in the case of when you go for purchasing certain goods from a kirana shop, retail shop, D-Mart or any kind of a mall. वहां पे आप जाते हो, there is a simultaneous performance of promise. There is a customer and a supplier relationship जहां पे end user होता है जनरली, बराबर. एंड यूजर क्यों? क्योंकि वो कस्टमर होता है जो चीज लेके यूज करने वाला है. तो आप पेमेंट देते हो और माल लेते हो, या फिर माल लेते हो एंड गिव द पेमेंट. तो दिस इज कॉल्ड एज अ साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. व्हाट इट हैज बीन गिवन इन दिस केस, प्रॉमिस हैज टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली. द कंडीशन एंड परफॉर्मेंस आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट दैट मीन्स immediate. If one of the party does not perform its promise, the other also need not perform its promise. For example, where A promised to deliver rice and B promised to pay the price on delivery, both have to perform simultaneously. Here both A and B must be willing and ready to perform their accepted part. Immediately they are going to perform. Take the goods, give the money. Take the money, give the goods. So this is called as a simultaneous performance of reciprocal promise. Second क्या बोला है? Performance of reciprocal promise where the order is expressly fixed. Section 52. Expressly fixed का मीनिंग क्या है कि you have designed a contract in a manner जहां पे परफॉर्मेंस का सीरियल नंबर has been written. Serial number in the sense it has been clearly defined कि which party is going to give his performance first. For example, if there is a contract between A and B and it has been said that A is going to give his performance first and only when A has completed his performance, only then B will come into picture and he is going to perform his promise. जैसे कि एक सिंगर का एग्जांपल लेते, उसको एक होटेलियर हैज गिवन हिम द टास्क कि उसको नाइट क्लब में गाना गाना है फॉर अ वीक and the contract is that he has to perform for the entire week and take his money at the weekend. Per night 1000 rupees has been decided. For 6 consecutive nights उसको परफॉर्म करना है. तो यहां पे परफॉर्मेंस पहले किसको देना है? सबसे पहले देना है परफॉर्मेंस सिंगर को. सिंगर होटेलियर को ऐसा नहीं बोल सकता है कि आप पहले पैसा दे दो और फिर मैं परफॉर्म करूंगा. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा डिजाइन नहीं हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरीके से डिजाइन होता है कि पहले होटेलियर अगर 6000 रुपए एडवांस देंगे एंड ओनली देन दैट सिंगर इज गोइंग टू परफॉर्म, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल गो अकॉर्डिंगली. इन दैट सर्कमस्टेंसेस द फर्स्ट परफॉर्मेंस हैज टू बी फ्रॉम द होटेलियर साइड एंड ओनली देन द सिंगर इज गोइंग टू गिव हिज परफॉर्मेंस. लेकिन यहां पे क्या डिसाइड हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि सिंगर इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर द एंटायर वीक and only then the performance will be given by the hotelier. यानी पहले singer is going to give the performance and after singer has completed his promise, hotelier is going to give the money consideration for the performance given by the singer. So this is how the order is fixed. तो जहां पे अगर expressly decided है तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस जिसका नाम पहले वो प्रॉमिस, नाम पहले इन द सेंस जिसका प्रॉमिस लिखा गया है कि वो पहले कंप्लीट करेगा तो ही हैज टू कंप्लीट हिज प्रॉमिस. तो इन दिस केस होटेलियर विल कम इनटू पिक्चर ओनली आफ्टर सिंगर हैज कंप्लीटेड द प्रॉमिस.
Singer cannot held hotelier for non-performance. Singer can held a hotelier for non-performance only after singer has given the performance. यहां पे सिंगर ने परफॉर्मेंस दिया ही नहीं है तो वो होटेलियर को नॉन परफॉर्मेंस के लिए गिल्टी नहीं ठहरा सकता है. हाँ, लेकिन होटेलियर सिंगर को नॉन परफॉर्मेंस के लिए डिफॉल्टिंग पार्टी ले सकता है. वो बोल सकता है कि आपने आपका प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसके वजह से मुझे दूसरा सिंगर हायर करने पड़ा, उसको मुझे इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा और एक्स्ट्रा पैसा जो गया है वो मैं आपसे कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में वसूल करूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइडेड था कि पहले परफॉर्मेंस सिंगर को देना था जो उसने नहीं दिया. क्लियर विद दैट? तो यहां पे बोला गया है कि अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और वहां पे डिसाइड किया गया है कि कौन सा पार्टी अपना प्रॉमिस पहले पूरा करेगा, तो वही पार्टी को अपना प्रॉमिस पहले पूरा करना पड़ेगा. व्हाट इट हैज बीन गिवन. When the order of performance is expressly fixed, the promise must be performed in that order only. For example, where A promises to build a house for B and B promises to pay after construction, here A must perform his promise before he can call upon B to fulfill his promise of payment of money. A's performance of promise is a condition precedent to B performing his part of promise. Any breach of promise by A would enable B to avoid the contract. तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि ए बी के लिए हाउस का कंस्ट्रक्शन करके देगा और उसके बाद बी उसको उस कंस्ट्रक्शन के चार्जेस पे करेगा. इट हैज बीन क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पे सबसे पहले जिम्मेदारी आएगी ए की. ए को अपना काम पहले पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद ही बी अपना पेमेंट देगा. यहां पे ए बी को डिफॉल्टिंग पार्टी नहीं ले सकता है कि बी पेमेंट नहीं दे रहा है. कब बोल सकता है? जब ए ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, उसके पहले नहीं. अगर ए ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो बी हैज अ राइट टू हेल्ड ए फॉर नॉन परफॉर्मेंस. ए कैन नॉट से दैट कि बी ने मुझे पेमेंट नहीं दिया इसलिए मैं अपना काम नहीं कर पाया. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट क्या डिसाइड हुआ है कि पहले ए कंस्ट्रक्शन पूरा करेगा और उसी के बाद बी उसको पेमेंट देगा. तो बी के परफॉर्मेंस सेकेंडरी है. प्राइमरी परफॉर्मेंस हैज टू बी गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज ए. व्हाट इज द थर्ड वन? परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बाय इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन इन द सेंस इंप्लाइडली अंडरस्टूड. दैट मीन्स वहां पे आपको एक्सप्रेसली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि परफॉर्मेंस कौन अपना पहले पूरा करेगा. जैसे कि एग्जांपल, व्हेन यू गो टू अ बैंकर फॉर टेकिंग अ लोन, बैंकर सेज दैट कि हम आपको 10 लाख रुपीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वी आर रेडी टू पे यू रुपीज 10 लाख प्रोवाइडेड यू विल हैव टू गिव द सिक्योरिटी ऑफ योर हाउस. तो यहां पे इट इज अंडरस्टूड दैट कि बैंक लोन का चेक रुपीज 10 लाख रुपीज का चेक जब भी इश्यू करेगा जब सबसे पहले वो पर्टिकुलर बोरोअर अपने घर की सिक्योरिटी बैंकर्स को देगा. यानी यहां पे नथिंग हैज बीन गिवन, ऑर्डर हैज नॉट बीन डिफाइंड, बट इट इज इंप्लाइडली अंडरस्टूड दैट कि किसको अपना प्रॉमिस पूरा करना है. यहां पे पहले बोरोअर हैज टू गिव द सिक्योरिटी ऑफ द हाउस एंड ओनली देन बैंकर इज गोइंग टू गिव द check, that is loan amount check to that particular borrower. तो here it is implied, it is understood कि किस पार्टी को अपना प्रॉमिस पहले पूरा करना है. वहां पे एक्सप्रेसली डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. What it has been given? Where the performance of reciprocal promise is not fixed expressly, sometimes the order is understood by implication. For example, where A agrees to make over certain stock in trade to B and B agrees to provide certain security for the value of stock in trade. First we'll try to understand the meaning of this example. क्या एग्रीमेंट हुआ है? A agrees to make over certain stock in trade to B and B agrees to provide certain security for the value of stock in trade. A ने B को बोला कि I am going to give you the goods on credit provided you give me the security. आप मुझे गारंटी प्रोवाइड करो, जो मैं आपको माल दूंगा कि उसका आप मुझे पेमेंट बाद में दे दोगे. तो यहां पे इट इज इंप्लाइड दैट कि गारंटी बी को देना है और ए को
गुड्स सप्लाई करना है, तो इट इज इम्प्लाइड, इट इज अंडरस्टूड दैट के पहले परफॉर्मेंस बी को देना है. बी हैज टू गिव द गारंटी, प्रोवाइड अ गारंटी. गारंटी इन द सेंस किसी बैंकर विल गिव अ गारंटी टू द सप्लायर दैट कि आप माल दे दो, पेमेंट विल बी गिवन बाय द बैंकर्स, और सम अदर पर्सन हु गिव्स द गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर के साहब आप माल सप्लाई करो, पेमेंट की जिम्मेदारी मेरी. तो यहां पे इट इज इम्प्लाइड, इट इज अंडरस्टूड दैट के फर्स्ट परफॉर्मेंस हैज टू बी गिवन बाय द कस्टमर. दैट मीन्स हियर बी हैज टू गिव द सिक्योरिटी, प्रोवाइड अ गारंटी, एंड ओनली देन ही इज गोइंग टू सप्लाई द गुड्स. A agrees to make over certain stock in trade to B, and B agrees to provide certain security of the value of stock in trade. Then A need not make over the stock until B provides the security, as by implication B is required to perform his part first. Otherwise A, in the absence of any security, will not make over the stock to B. So first performance has to be given by the customer. Next one is effect of one party preventing the another from performing a promise. This is also called as a offer to perform or tender. This tender is somewhat different from the government tender. This tender of performance or offer to performance का meaning क्या है कि आप आपका प्रॉमिस, आपका पार्ट पूरा करने के लिए रेडी हो, लेकिन सेकेंड पार्टी जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आपको आपका प्रॉमिस पूरा नहीं करने दे रहा है. देयर मे बी एनी रीजन कि कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर हो गया, आपको आपका प्रॉमिस पहले पूरा करना है, आप रेडी हो आपका प्रॉमिस पूरा करने के लिए, लेकिन सामने वाला पार्टी आपको अलाउ नहीं कर रहा है वो प्रॉमिस. देयर मे बी एनी रीजन, लाइक उसको अब रियलाइज हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर हो गया लेकिन इस पार्टी ने चार्जेस ज्यादा लिए, या फिर उसने अगर प्रॉमिस पूरा कर दिया है तो बाद में उसको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा. फॉर एनी रीजन ही इज नॉट अलाउइंग टू कंप्लीट माय प्रॉमिस. फॉर एग्जांपल, आई एम अ आर्किटेक्ट and I have entered into a contract with you that I am going to design your house. But for designing your house, I need a entire 7/12 extract. That means I need a आपकी जगह मुझे आपको दिखाना पड़ेगी कहां पे, उसका एरिया कितना है, and accordingly then only I can plan for you that particular house. तो यहाँ पे I'm ready to give my performance. I'm ready to give my service to you. We have entered into a contract. It has been defined. You told me that it is 2500 square foot of land. I told you that okay, I'm ready to perform. I'm ready to give my services of architecture to you, and you are ready to give me the amount fix हुआ है कि entire service के लिए you're going to give me ₹1 lakh, और मैं पूरा आपको planning करके दूंगा and everything I'm going to do. Now the thing is, I am going to give my performance only when required चीजें आप मुझे प्रोवाइड करो. तो मैं आपके पास आया और मैंने आपको बोला कि चलिए अपन आपका एरिया देख लेते. You just give me, you just give me the 7/12 extract paper from तहसीलदार ऑफिस, and accordingly I am going to start my work. आप बोलते हो आज मैं बिजी हूं, आप कल आइए, you call me tomorrow. तो मैं रेगुलरली आपके पीछे लगाऊं, लेकिन आप जो चीज आपसे मुझे चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो. तो हियर इट मीन्स दैट के आई एम रेडी टू परफॉर्म माई प्रॉमिस. दैट मीन्स आई एम ऑफरिंग माई सेल्फ टू प्रोवाइड द सर्विस, लेकिन यू आर प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम गिविंग माई परफॉर्मेंस. तो दिस इज कॉल्ड एज ऑफर टू परफॉर्म. व्हाट इट हैज बीन गिवन when in a contract consisting of reciprocal promise, one party prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented. A best example we can take that, okay, I am residing for example in Mumbai and I am a big supplier of power tools. You have given me certain order, you have given me an order of drill machine, for example 1000 ड्रिल मशीन्स आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने आपको रेट बताया, आप हो गए रेडी वो रेट पे परचेस करने के लिए. आपने मुझे पूछा कि डिलीवरी आप कितने दिन में दोगे. आई टोल्ड यू दैट बाय नेक्स्ट मंडे यू विल गेट द डिलीवरी. माय ट्रांसपोर्टर विल कम टू योर प्लेस एंड विल डिलीवर द गुड्स, एंड अकॉर्डिंगली यू गिव द पेमेंट टू हिम.
अब हुआ क्या, नेक्स्ट मंडे मैंने आपको बोला कि माल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मंडे मेरा ट्रांसपोर्टर वाला आपके सिटी जलगांव में माल लेके आया और आपको फोन लगा रहा है कि आपने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर में लेके आया हूं, यू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब यहां पे आई एम द पार्टी इज रेडी टू, सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई द गुड्स, बट हियर द कस्टमर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोज गुड्स। तो हियर इट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिंग द अदर पार्टी टू गिव द परफॉर्मेंस। तो सप्लायर माल देने तैयार हो, ट्रांसपोर्टर एजेंटा 4 गेज पे आया, चौफुली पे आया, उसने कॉल किया कस्टमर को कि आपका माल मैं लेके आया हूं, आप मुझे बताइए कि आपको डिलीवरी कहां पे चाहिए। मैंने फोन में सुना और फोन को कट कर दिया। सेकेंड टाइम फिर से उसने फोन लगाया, आई टोल्ड हिम दैट राइट नाउ आई एम वेरी बिजी, मैं आपको कॉल करता हूं एंड आई विल गिव यू द एड्रेस, वहां पे आप डिलीवरी दे दो। दैट पर्टिकुलर पर्सन केम इन मॉर्निंग एट 8 AM, शाम के 6 बज गए एंड आई हैव नॉट टेकन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। वो पर्टिकुलर ड्राइवर रात भर जलगांव में रुका रहा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन ही हैज कॉल्ड, बट आई एम नॉट रेडी टू पिक अप द फोन। नाउ यू जस्ट टेल मी वेदर दैट पर्टिकुलर ड्राइवर इज गोइंग टू stand at that particular place only for year to year, days to days? नहीं, वो खड़ा रहेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि I am not ready to take the delivery of the goods. Now here, who is liable for non-performance? Of course, the customer who has not taken the delivery. So that supplier is going to hold that particular customer liable and he is going to avoid, that means he is going to treat the contract as cancelled and he is going to file the case against the customer for recovery of the compensation. जो भी उसका खर्चा हुआ है मुंबई से जलगांव, जलगांव टू मुंबई, whatever expenditure he has incurred, वो किससे वसूल करेगा? कस्टमर से। तो what it says, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented. The person so prevented is entitled to get the compensation for any loss he may have sustained for non-performance. तो यहां पे एक पार्टी रेडी है, दूसरा पार्टी उसको प्रॉमिस पूरा नहीं करने दे रहा है, तो सेकंड पार्टी के पास ये राइट है कि फर्स्ट पार्टी के अगेंस्ट में ही इज गोइंग टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइडेबल। वॉइडेबल इन द सेंस, अब उसको समझ में आ गया कि ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ही इज गोइंग टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, treat the contract as cancelled, and he is going to file a case against the first party for the recovery of the compensation. The above can be illustrated with the following illustration by way of two cases where there is a contract for sale of standing timber, and as per the terms, seller is expected to cut and coat the standing timber before the buyer takes the delivery, but the seller coat only a part of it but neglect to coat the rest of it. Then the buyer has a right to avoid the contract and claim the compensation for any loss sustained. What it has been given कि कस्टमर का सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि सप्लायर उसका फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चरल लैंड है जिस पर टिम्बर ट्रीज है, बायर हैज परचेज ऑल दोस टिम्बर ट्रीज, फॉर एग्जांपल देयर आर 1000 टिम्बर ट्रीज, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चरिस्ट इज गोइंग टू कट ऑल द ट्रीज और उसके कॉर्ड बना के देंगे, कॉर्ड इन द सेंस 10-10 के लॉग्स बना के डिलीवर करेगा कस्टमर को। सप्लायर ने 250 टिम्बर ट्रीज को कट करके उसका कॉर्ड बना दिया और रिमेनिंग का वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है, तो बायर क्या वो वेट करता रहेगा कि कभी ना कभी पूरा करेगा? आंसर इज नो। बायर के साइड से इट विल बी अज्यूम दैट कि सेलर अपना प्रॉमिस पूरा करने तैयार नहीं है, he will avoid the contract and treat the contract as cancelled, and he is going to file a case against the supplier for non-performance, and he is going to recover the damages and a compensation from the seller. Second one is A and B contract that B shall execute certain work for A for ₹1000. B is ready and willing to work accordingly, but A prevents him doing so. The contract becomes voidable at the option of B. If he elects to rescind it, he is entitled to recover from A compensation for any loss which he has incurred by its non-performance. A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि B execute certain work for A for ₹1000. B काम करेगा, A 1000 रुपए देगा। B अपना काम करने तैयार है लेकिन A उसको काम नहीं करने दे रहा है, तो इन दैट केस B has a right
to treat the contract as voidable. Avoid the contract and claim the compensation from defaulting party. Next one is effect of default as promise to be performed first. Section 54 of the Act provides that the promise may be such that one of them cannot be performed or its performance cannot be demanded till the other has been performed. What it has been said? Promises may be such that one of them cannot be performed. एक promise नहीं perform हो पा रहा है, या फिर its performance cannot be demanded till the other has been performed. यहां पे जब तक सामने वाला परफॉर्म नहीं कर देता है, जब तक दूसरे पार्टी के परफॉर्मेंस का डिमांड आप नहीं कर सकते हो. तो ये सेक्शन 54 बोलता है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. अब ये क्या हो सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस की वी हैव ऑलरेडी सीन दैट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस एक्सप्रेसली डिफाइन है, जबकि दोनों में से कोई भी एक जन पूरा कर सकता है. पहला आप पूरा कर सकते हो या पहले मैं पूरा कर सकता हूं, लेकिन डिफाइन किया गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेसली डिफाइन कि पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा. कुछ चीजों में इंप्लाइड है कि वहां पे कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड दैट कि किसको अपना प्रॉमिस पहले पूरा करना है. अब इस केस में बोला गया है कि यहां पे मेरा परफॉर्मेंस कुछ चीजों पे डिपेंड है, यानी आपकी कोई चीज पे मेरा परफॉर्मेंस डिपेंड है. जब तक आप वो चीज नहीं कर सकते हो, जब तक मेरे परफॉर्मेंस की बारी आने का सवाल ही नहीं उठता है. तो व्हाट इट हैज बीन गिवन, where B, a ship owner, agrees to convey A's cargo from Calcutta to Mauritius for a freight. Here the beginning part of the transaction is on A, as he has to provide the cargo to B to enable B to perform his promise. Thus, until cargo is handed over by A cannot expect B to perform his promise, nor be in a position to perform his promise. This peculiar position arises because default on the part of one of the party. Here B is entitled to put an end to the contract and claim compensation for loss he may have suffered. Simple example, I am a transporter. My work is to take the goods from one place to another. आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका कोई बल्क कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल 500 टन्स ऑफ जूट मुझे जलगांव से मुंबई ले जाना है, और आपने मेरे साथ वो कार्गो फिक्स किया है, ट्रांसपोर्ट फिक्स किया है, और मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसीलिए मैंने किसी और के साथ मेरा ट्रांसपोर्ट बुक नहीं किया. नाउ द थिंग इज माय परफॉर्मेंस, मुझे वो डिलीवरी देना है, जलगांव से लेके गुड्स मुंबई लेके जाना है. मैं कब ले जा सकता हूं? जब आप मुझे वो गुड्स डिलीवर करोगे. जब अगर आप मुझे वो गुड्स डिलीवरी नहीं करोगे, हाउ कैन आई टेक द गुड्स फ्रॉम जलगांव टू मुंबई? तो माय परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस. तो पहले आपको आपका प्रॉब्लम. अब आप सपोज वो गुड्स लेके नहीं आए, तो डेफिनेटली आई कैन हेल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेरा ट्रक एम्प्टी गया यहां से, या फिर आधा जो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें 50% माल आपका था, 50% किसी और का था. तो 50% जगह एम्प्टी हो गया, इतना मेरा भाड़ा गया, मेरा रेंट गया. तो दैट पर्टिकुलर जो भी मेरा लॉस हुआ है वो लॉस मैं आपसे रिकवर करूंगा. नेक्स्ट वन इज position of legal and illegal part of reciprocal promise. This we have already referred in the previous unit, legality of object. Position of legal and illegal part of a reciprocal promise. अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से डिजाइन है कि one part is legal and other part is illegal, we've already seen that if those part cannot be separated, the entire contract is void. However, if the legal part can be separated from the illegal part, in that case legal part is valid and illegal part is void. मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि एक मैनेजर एक फैक्ट्री को सुपरवाइज कर रहा है, जिसमें लीगल चीजें भी बन रही है, इलीगल चीजें भी बन रही है, लेकिन वो सुपरविजन चार्जेस का पूरा पैकेज एक ही डिसाइड हुआ है कि इतना सैलरी आपको मिलेगा. तो यहाँ पे सैलरी का पार्टीशन नहीं है. सैलरी को सेपरेटली डिफाइन नहीं है कि लीगल पार्ट के लिए इतना, इलीगल पार्ट के लिए, तो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज
illegal and void. However, if it is said that कि लीगल पार्ट के लिए सैलरी इतना मिलेगा, इलीगल पार्ट के लिए सैलरी इतना मिलेगा, तो लीगल पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इलीगल पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट इज void. What it has been given? Reciprocal promise to do certain things that are legal and certain other that are not legal, that is illegal. Section 57 of the Act provides that if the reciprocal promises has two parts, the first part being legal, second part being illegal, the legal part is valid contract, illegal part is void. Where A agrees to sell his house to B for 5 lakh and further A insists and it is agreed that if the house is used as a gambling house, then B would pay another 7,50,000. In this case, the first part is valid and legal and the second part as is illegal. Now here it has been clearly defined कि अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए घर यूज करेंगे 5 लाख रुपए में मैं आपको घर दूंगा, गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे मैं आपको घर 7.5 लाख रुपए में दूंगा. अब आप उस घर को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हो, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. अगर आप वो घर गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करते हो और मैं आपसे 7.5 लाख रुपए ले लेता हूं या 7.5 लाख रुपए ले लेता हूं, आपको घर गैम्बलिंग पर्पस के लिए देता हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इलीगल एंड वॉइड. अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल. ये भी अपन ने लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में देखा था कि आपने एक प्रॉमिस दी, मैंने उसके बदले में आपको एक प्रॉमिस दिया है और मैं वो प्रॉमिसेस में कुछ कॉम्बिनेशन रख रहा हूं कि ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा रख रहा हूं कि एक पार्ट जो है वो लीगल है और उसका अल्टरनेटिव जो कॉम्बिनेशन रख रहा हूं उसका सेकेंड पार्ट इलीगल है. तो यहां पे अगर आप आपका प्रॉमिस पूरा कर देते हो और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूं, अगर वो पार्ट लॉफुल प्रॉमिस है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. अगर वो पार्ट अनलॉफुल है, the consideration is unlawful, then that particular contract will become void. What it says? In the case of alternative promise, one branch of which is legal and other illegal, the legal branch alone can be enforced. A and B agree that A shall pay 1 lakh for which B shall afterward deliver to A either rice or smuggle opium, that is drugs. This is a valid contract to deliver rice and avoid an unlawful agreements for APM. मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, आपको बोला कि अगर वो 1 लाख रुपए का राइस या तो राइस भेजो और राइस नहीं जम रहा तो ड्रग्स भेजो. If you send the rice, the contract is valid. If you send the drugs, the contract will be called as void and illegal. So this is all about order of performance. I hope you have understood the concept. Still, if you have any doubt, please ping me. Bye everyone.